Good morning to all. Myself Sunita Bhatt, Assistant Professor in IMT University. So today is my topic on dystocia, abnormal labor. This is called the abnormal labor. This is a unit 4 for the BSc Nursing 4th year students. So the topic is that the abnormalities of the labor and the delivery and its management. राइट कि व्हाट इज़ द एबनॉर्मल लेबर, ये पढ़ेंगे हम, जिसको हम अदर लैंग्वेज में डिस्टोसिया भी कहते हैं. राइट, सो दिस इज़ अ यूनिट 2. जो प्रोग्राम है हमारा वो बीएससी नर्सिंग एंड द कोर्स इज ऑब्स्टेट्रिक एंड मिडवाइफरी और ड्यूरेशन हमारी रहेगी इसकी 45 मिनट्स. सो जो टॉपिक हमारा है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर देयर्स. जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टूडेंट्स जानते हैं कि व्हाट इज़ अ लेबर एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल लेबर लिटिल बिट. And the specific objective after the completion of this unit, this is that the abnormal, what is the abnormal labor? They were able to define dystocia and the clinical findings, adequate, inadequate labor, and the 3 P's responsible for the dystocia. So we are talking about the dystocia. So first we discuss dystocia. We know what is etosia. Etosia is a biological name of normal labor. So etosia is a normal labor and we are talking about the dystocia. This is literally mean that the difficult labor and it is characterized by the abnormally slow progress of the labor. So slow progress means जो events होते हैं हमारे वो they are coming slow down. There are 8 to 9 events were done for the normal labor. If in these events, in this series of events, if there is any obstruction or any inadequate progress, this causes the dystocia, right? So we are also taking the normal labor, disproportion between the presenting part. Presenting part means the fetal part. Presenting part जो fetal जिस pressure से वो present कर रहा है उसमें कितना pressure है, that is called the presenting part of the fetus. And the birth canal. Birth canal is a pelvis part through vagina. The fetus comes out to the exterior world, from the uterus to the external world. ठीक है, it is a consequence of the 4 distinct abnormality existing singly or in the combination. सिंगल भी कॉज हो सकता है और वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. सो बेसिकली जब हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे तो हमें पता रहता है कि देयर आर द 3 P's आर रिस्पॉन्सिबल्स, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि क्या है वो चीज़ें जो नॉर्मल लेबर को एबनॉर्मल की तरफ लेके जाती हैं. एज वी नो देयर आर द 3 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. तो जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं they were maximum causing the disproportion between the normal labor. So when the labor pains is started the progress is not progressive in such a manner or inadequate power, so it comes to the dystocia. Now we are talking about the dystocia. Abnormalities of the expulsive forces. Expulsive forces are there if this is doing by the female. Expulsive, this is a power which is forces a fetus a vital conception to the external world, from the uterine world to external world. So this is called the expulsive forces. Either these forces are या तो this is a uterine force or insufficient, strong or inappropriate coordinated to efface and dilate the cervix, uterine disinfection and inadequate voluntary muscles effort during the second stage of labor. Right? जो ये बात कही जा रही है, this is the forces. जो force है, force किसका? The uterus where the baby is there. आप बेबी को बाहर निकालना है तो that is called the expulsive force. This is done by the uterus. पर अगर हमारा uterus इस कैपेबिलिटी में नहीं है कि वो fetus को बाहर निकाल पाए, so this is called the inappropriate coordinated or the dilation of cervix. अगर ये हमारा contraction expulsive force क्या है, powerful नहीं है, तो क्या होगा, जो हमारा डायलेशन ऑफ सर्विक्स है जिसे हम कहते हैं बच्चेदानी का मुंह, वो ओपन नहीं होगा और बच्चा बाहर एक्सपल आउट नहीं होगा.
सो इसको हम अदर लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अ यूट्राइन डिसफंक्शन, यानी हमारा जो यूट्रस है जिस तरीके से उसे फंक्शन करना था वो उस तरह का फंक्शन नहीं कर रहा है। सेकंड, एबनॉर्मलिटीज ऑफ द मैटरनल बोनी पेल्विस, दिस इज ओनली द फोर्स which is done by the uterus, but this is the maternal bony pelvis. The pelvis is also responsible because it is a passage. We are talking about the 3 P's, the power, passage and the passenger. The power is a force जो हमने अभी पढ़ा, जिसको हम कहते हैं क्या, यूट्रस फोर्स। एंड अगर हम बात करें पैसेज की, तो पैसेज इज द पेल्विस, और अगर हम बात करें पैसेंजर की, तो हु इज द पैसेंजर? द पैसेंजर इज अ fetus, right? So abnormalities of the presentation of baby, what is the presentation of a baby, and what is the position and or the development of the fetus. These 3 things are very important to causing the dystocia. या तो बच्चे का प्रेजेंटेशन माल प्रेजेंटेशन है, या उसका पोजीशन माल पोजीशन है, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसको, और जो उसका डेवलपमेंट है फीटस का वो उस एप्रोप्रिएट नहीं है डिलीवर करने के लिए, सो वो भी कॉज करेगा आपको डिस्टोसिया, यानी वो एबनॉर्मल लेबर की तरफ जाएगा। एबनॉर्मलिटीज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी जो सॉफ्ट टिश्यू है, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड गिविंग द स्पेस टू द बेबी टू एक्सपेल आउट फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी। पर अगर वो जो उनमें अगर कोई अबनॉर्मलिटीज आपको दिखाई देती हैं इस ट्रैक में जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट इज आल्सो कॉज द ऑब्स्ट्रक्टिव टू द फीटस डिस्टेंट, बच्चा नीचे की तरफ डिसेंड नहीं होगा अगर ये वाली जो टिश्यूज हैं इनमें अगर कोई डिफॉर्मिटीज या एबनॉर्मलिटीज होती हैं। नाउ These abnormalities can be simplified into the 3 categories. जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी कि हम 3 P's को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं मोस्टली, पावर, पैसेज एंड पैसेंजर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ द पावर। द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द पावर, यानी कि पावर किसकी? यूट्रस कॉन्ट्रैक्सिटी एंड द मैटरनल एक्सपेल्सिव एफर्ट, ये दोनों एफर्ट मिलके बच्चे को एक्सपेल आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। अगर इसी पावर में एबनॉर्मलिटी आ जाए, किसमें? हमारे यूट्राइन की का जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो मैटरनल का अपना एक्सपेल्शन फोर्स है, अगर इस पावर में थोड़ी बहुत भी कमी आ जाएगी तो जो इसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और बेबी ये दिस लेबर इज गोइंग टू बी द प्रोलॉन्ग लेबर, और female can goes to exhaustion, right? Abnormalities involving in the passenger and abnormalities of the passage, like this is a 3 P's. The first is the power of uterus as well as mother expulsive power, and we are second about the passenger. Who is the passenger in this? This is the passenger is fetus only. And the abnormalities of the passage is the way where from the fetus is expelled out to the external world, right? That is a pelvis. These 3 P's are very much responsible for causing the dystocia. इन तीनों P's में से if there is any kind of abnormality, the labor is going to the prolonged or the obstructed labor. सो कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग्स जिनके लिए हम ये कहते हैं कि ये इनइफेक्टिव लेबर है, तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज अ इनएडिक्वेट सर्वाइकल डायलेशन और द फीटल डिस्टेंस। इनएडिक्वेट सर्वाइकल डायलेशन मीन्स वी नो कि डायलेशन इज गन टू द 4 फिंगर और द 10 सेंटीमीटर, तो इट्स क्वाइट सफिशिएंट टू एक्सपेल आउट अ बेबी। बट इफ देयर इज अ इनएडिक्वेट सर्वाइकल डायलेशन, तो बेबी कभी भी नीचे डिसेंड नहीं होगा और वो लेबर में नहीं जा पाएगा। सो प्रोटेक्टेड लेबर मीन्स उसकी स्लो प्रोग्रेस है, डायलेशन बहुत स्लो हो रहा है, एंड अरेस्टेड लेबर मीन्स उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस मीन्स उसका लेबर बहुत स्लो आ रहा है, उसको जो लेबर पेन्स है वो बहुत स्लो आ रहे हैं, और डायलेशन साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? कम प्रोग्रेसिव है, राइट? एंड इनएडिक्वेट एक्सपेल्सिव एफर्ट, ये एक्सपेल्सिव एफर्ट है, दिस इज डन बाय द मदर। अगर हमारा ये एफर्ट भी कम हो जाता है, यानी पुशिंग डाउन और द बियरिंग डाउन प्रेशर इज डन बाय द वुमेन, इनमें अगर इनएडिक्वेट हो जाएगा तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ineffective labor. Now the second one is feto-pelvis disproportion. Feto-pelvis means feto is the fetus and the pelvis is the woman passage. Woman passage, that is the pelvis.
अगर फीटस के स्कल में और पेल्विस के डायामीटर में डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा तो दिस लेबर इज आल्सो गो फॉर द इनइफेक्टिव लेबर। सो इसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेसिव फीटल साइज। आप क्या है, फीटर आपका जो पेल्विस है उसका डायामीटर छोटा है, बट बेबी का जो साइज है वो क्या है, उससे ज्यादा बड़ा है, तो बेबी उसमें से पेल्विस से बाहर नहीं आ पाएगा, डिसेंड नहीं हो पाएगा। एंड देन द सेकेंड इज इनएडिक्वेट पेल्विस कैपेसिटी, या हमारा जो पेल्विस है उसकी जो कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है, उतनी सफिशिएंट नहीं है जो बेबी को डिलीवर कर पाए। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज अ माल प्रेजेंटेशन और द पोजिशन ऑफ द फीटस। माल प्रेजेंटेशन मीन्स कि ओनली द नॉर्मल प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बेबी इज डिलीवर फ्रॉम यूट्राइन टू द vaginal birth canal, that is a vertex position, cephalovertex position. If the cephalovertex position is not there, so there is a disproportions between the feto and pelvis. Then there's and the last there's a ruptured membrane without labor, यानी कि लेबर आए नहीं पर क्या हुआ, उसका जो मेम्ब्रेन था वो पहले से ही रैप्चर हो गया। These are causing this is the clinical findings which causes the ineffective labor. So inadequate labor में अगर हम बात करें कि अगर यूट्रस हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या कारण है ऐसे? For the propulsion and the expulsion of the fetus. Expulsion means from outer from the birth canal, from the uterus to the external ward through birth canal, that is called the expulsion of the fetus, that is called the contraction of the uterus, reinforced during the second stage by voluntary or involuntary muscular action of the abdomen wall, that is called the pushing down and the descent of baby. This is done by the voluntary and involuntary muscles which is done by the uterus, right? The uterine dysfunctioning means the low intensity contraction, यानी जो contractions हैं वो उस intensity के नहीं थे जिससे बच्चे को वो expel कर दे और बच्चा descend होते होते birth canal से expel out हो जाए। Common this significant disproportion because the uterus does not often self-destruct when the faced with the mechanical obstruction. अगर इन सब में अगर यूट्रस के फोर्स ने काम नहीं किया, उसके मसल्स काम नहीं कर रही, उसकी लो इंटेंसिटी है, तो क्या होगा, हमारा जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत कम रहेंगे, वो प्रोग्रेसिव स्थिति में नहीं रहेंगे, जिससे बच्चा डिसेंड नहीं होगा और वो क्या कहलाएगा, आपका जो इनएडिक्वेट लेबर की तरफ चला जाएगा और इट्स कॉज अ प्रोलॉन्ग लेबर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 सिग्निफिकेंट एविडेंस इन द ट्रीटमेंट। If there is something is there, तो what the advances, अगर हम इसमें कोई ट्रीटमेंट दे के इसको आगे प्रोग्रेसिव हिस्से में ले जाएं, so सबसे फर्स्ट इज द रियलाइजेशन दैट अंडर ड्यू प्रोलॉन्गेशन ऑफ द लेबर मे कंट्रीब्यूट टू प्रीनेटल मोबिलिटी एंड द मोर्टेलिटी। अगर हमने इस इनएडिक्वेट लेबर के बीच में कोई छोटे छोटे ट्रीटमेंट दे दें तो उससे क्या होगा, जो प्रीनेटल मोर्बिडिटी थी या उसकी मोर्टेलिटी थी, उसके मरने के चांस या उसको किसी इन्फेक्शन होने के चांसेस को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। यूज ऑफ डाइल्यूट intervention insufficient of oxytocin in certain type of uterine dysfunctioning, हम थोड़ा बहुत इंट्रावेनसली ऑक्सीटोसिन को देके उसके कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा सकते हैं, जिससे मदर क्या कर सकते हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन लेवल है, जो उसका यूट्रस डिसफंक्शनिंग है, वो उस इंटेंसिटी से कॉन्ट्रैक्शन ले आएगा जिससे बच्चा डिलीवर हो जाएगा। एंड द मोर फ्रिक्वेंटली यूज, आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि वी आर गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन रादर देन द डिफिकल्ट बाय मिड फोर्स डिलीवरी व्हेन द ऑक्सीटोसिन फेल्स। अगर हमें लगता है कि हमारा ऑक्सीटोसिन फेल हो गया, जो इंट्रावेनसली हमने ड्रॉप्स उसको दी थी 10 इंटरनेशनल यूनिट्स, अगर वो फेल हो जाता है तो वी आर नॉट यूजिंग द फोर्सेड डिलीवरी। दिस इज नाउ द रिसेंट ट्रेंड इज दैट कि वी आर नॉट यूजिंग द फोर्सेड डिलीवरी और द वैक्यूम डिलीवरी, we are go directly to the cesarean section. It is quite important or quite safer method to save the baby as well as mother. So inadequate labor, the type of the uterine dysfunction, अगर हम बात करें तो the first one is the hypotonic uterine dysfunction.
दिस इज अ मोर कॉमन। हाइपो मीन्स जो यूट्रस है उसका जो टोनसिटी है वो बहुत कम है, और नो बेसल हाइपरटोनियस, ये ज़्यादातर क्या है उसका जो बेसमेंट है वो क्या है, वो टोनिसिटी उसकी अच्छी नहीं है। एंड द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हैव अ नॉर्मल ग्रेडियंट पैटर्न, जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शंस उसके यूट्रस में आ रहे हैं वो क्या है, एक नॉर्मल ग्रेडियंट पैटर्न में है। एंड द साइट राइज इन द प्रेशर ड्यूरिंग अ कॉन्ट्रैक्शन इज इनसफिशिएंट टू डायलेट द सर्विक्स। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो प्रेशर उसके द्वारा लगाया गया है, तो उससे जो हमारा जो डायलेशन ऑफ सर्विक्स है वो अच्छा नहीं हो रहा है। फिर देन वी आर टॉकिंग ऑफ द हाइपरटोनिक, यानी उसकी जो कैपेसिटी वो कम है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइपरटोनिक डिसइंफेक्शन। हाइपरटोनिक मीन्स यानी कि वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन उस लेवल से ज्यादा आ रहे हैं, ये भी बहुत कॉमन देखा जाता है। आइदर द बेसल टोन इज एलिवेटेड और द प्रेशर ग्रेडियंट डिस्टोर्ड, यानी कि जो प्रेशर अब यूट्रस लगा रहा है वो अपनी इंटेंसिटी से ज्यादा लगा रहा है, जबकि बच्चे अभी डायलेशन इतना कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट द asynchronic of the impulse originated in each cornea. Now the causes of uterine dysfunction, क्यों यूट्रस हमारा इस तरह से काम नहीं करता। सबसे पहला कॉज है क्रोनियोअमोनाइटिस। दिस इज अ इंफेक्शन कॉजेज बाय अ बैक्टीरिया, और जब ये इन्फेक्शन हो जाता है दिस इज पासेस थ्रू फ्रॉम द वजाइना टू द फीटस एज वेल एज टू डिसइंफेक्टिंग द प्लेसेंटा। इट इज काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन कॉजिंग बाय अ बैक्टीरिया, ओके। एंड द मेटर्नियल पोजीशन ड्यूरिंग द लेबर, अगर हम बात करें जो माँ की जो पोजीशन है जिस टाइम पर लेबर था वो क्या है, वो क्या है, ठीक नहीं है लेबर करते वक्त, यानी डिलीवर ऑफ बेबी के लिए, तो भी ये भी एक कारण हो सकता है इसका, पर इसका कोई एविडेंस नहीं है। देयर इज नो एविडेंस फॉर और अदर इज वर्किंग ड्यूरिंग द लेबर। जैसे हम कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चलिए, आप उसको बियर डाउन प्रेशर में आप थोड़ा बैठिए, ये, लेकिन इसका हम नहीं कह सकते कि कोई सबूत या ऐसा कोई एविडेंस है। दिस इज कॉजिंग cause of uterine dysfunctioning. So birthing position in this second stage, it is very important कि जो second stage है जिस टाइम पे उसने बेबी को डिलीवर करना है, this is called the second stage. From the full dilation to deliver of a baby is the second stage. As you know, the first stage is from the true labor to the dilation of the cervix, and the second stage is the full dilation to the deliver of the baby. This is the second stage. We are talking about the second stage. The birthing position in second stage is not appropriate, पर इसका भी कोई ऐसा evidence हम नहीं मान सकते। And then now the third is immersion in water. What is immersion in water? This is now practiced in new trains. It is very effective. It is very effective when the patient is calm in labor. We can sit in a cis bath or a pool or a water tub to deliver a baby. It is very effective. The researchers say that the immersion in water can also come to the uterine functioning very well. So inadequate labor में what the treatment we are giving, तो treatment तो as such कुछ नहीं है, we are having the oxytocin, prostaglandin we are using. So सबसे पहले हम करते हैं oxytocin infusion, जिसकी वजह से क्या उसके कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, थोड़े बढ़ जाते हैं, या अगर बढ़ गए हैं तो हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। देयर इज अ ग्लूकोज इन्फ्यूजन एंड द मोबिलाइजेशन, यानी उसको मूविंग होना। अब अगर हमें सर्विक्स डायलेशन करना है, वी यूज दीज थिंग्स। फर्स्ट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एंड द डोर्टावेरिन प्लस ओपिएट्स, पैरासर्वाइकल ब्लॉक्स एंड द एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। And the fifth one is the perineal relaxation. Perineal relaxation we are using the peridural blocks and epidural analgesia and the spinal analgesia. The contractile pelvis inlet. अगर हम बात करें कि फीटो पेल्विस डिस्प्रोपोर्शन, अभी हमने पहले बात की वो यूट्रस के डिस्फंक्शनिंग पे बात की थी, इससे मैंने स्टार्ट किया था। तो जो सेकंड है दैट इज अ फीटो पेल्विस डिस्प्रोपोर्शन। अब इसके लिए सबसे पहले क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डिस्प्रोपोर्शन हुआ फीटस और उसके पेल्विस में। तो सबसे फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इनलेट, यानी जो पेल्विस के डायामीटर्स हैं उसके डायामीटर्स अगर शॉर्टेंड हो जाएं, दैट्स व्हाई इट्स कॉजिंग द डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन द फीटस एंड द पेल्विस।
सो अगर शॉर्टेंड हो जाए कौन सा, अगर आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज लेसर देन द 10 सेंटीमीटर और द ग्रेटेस्ट ट्रांसफर डायमीटर दैट इज लेसर देन द 12 सेंटीमीटर and the prior to the labor fetal biparietal diameter has been shown to average to 9.5 to 9.8 centimeter. Small women, we are talking about the height of the woman. The small women have the small pelvis and usually the smaller infants और छोटी, जैसे हम कहते हैं छोटी माँ का छोटा बच्चा, same like that. The small women have a small pelvis and the small infants. And this in the woman with the contracted pelvis, if there is a contracted pelvis, the face and the shoulder presentations are encountered. Means अगर बच्चे का presenting part is the face or a shoulder, तो वो क्या करेगा, उसको encounter कर देगा in the 3 times more frequently causes the cord prolapse, यानी कि बेबी से पहले the cord is prolapsed there, occurs the 4 to 6 times more frequently. ऐसा एविडेंस कहता है कि अगर बच्चे का फेस या शोल्डर प्रेजेंटेशन है और उस वुमेन में हमारा जो कॉर्ड प्रोलैप्स है उसके चांसेस 4 to 6 टाइम्स बढ़ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है, और अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाती है इट्स अ काइंड ऑफ इमरजेंसी and we are go for the cesarean section. We are not using any kind of intervention in between there. So contracted, next we are talking about the contracted in the mid pelvis, यानी कि बीच में pelvis के जो हमारा contraction आता है, contraction उसको हम खोलेंगे यहाँ. more common than the inlet contraction, जो हमारा inlet part, अगर आपने pelvis पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसका एक inlet diameter है, एक outlet diameter है और एक central diameter है. that is the common is in the inlet अंदर से जो आने वाला है, that is the inlet and the outlet pelvis contractions. The transfer diameter is 10.5 centimeter, anterior posterior diameter is 11 and 11.5 centimeter, and the posterior sagittal diameter is 5 centimeter. So contracted mid pelvis means the transfer plus posterior sagittal diameter is lesser than 3.5 centimeter. If we plus these two diameters, transfer as well as the posterior diameter, that is lesser than the 3.5 centimeter. So this is, you are shown that the diameters, this is a transfer diameter and this is the anterior posterior diameter. So this is a casual view, you are saying this is the diameter, this is a anterior posterior diameter, and this is a transfer diameter, and this is a oblique diameter. This is conjugate or this diameter is shortened, so the babies have not passed through this pelvis inlet and it causes a inadequate progress or the dilation of the cervix. So we are talking about again the contracted pelvis. mid pelvis की हमने बात कर ली, contracted pelvis, the contracted pelvis outlet. अभी हम inlet की बात कर रहे थे, and the outlet means जहाँ से बेबी को बाहर आना है. In the outlet, the interstitial tuberous diameter is lesser than 8 centimeter, and the outlet contraction without commitment of the mid plane contraction is rare. ये ज़्यादातर आपको रेयर दिखता है कि इनलेट वाला डायमीटर में ज़्यादातर डिस्प्रोपोर्शन हम फील करते हैं. दिस इज आल्सो कॉज बाय द पेल्विस फ्रैक्चर. अगर उसको पेल्विस में कभी फ्रैक्चर हुआ है तो आउटलेट जो हमारा डायमीटर है दैट इज कम टू बी कॉन्ट्रैक्टेड. सो इनएडिक्वेट लेवल द फीटो पेल्विस डिस्प्रोपोर्शन. एक्सेसिव फीटल साइज, आपको पता ही, मैंने इस बारे में बात की थी कि पेल्विस का जो डायमीटर है उससे ज्यादा बच्चे का साइज है, तो भी क्या होगा, देयर इज अ डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन द पेल्विस एज वेल एज इन फीटस. सो द सेल्डम इज एन एक्सपल्शन ऑफ द फेल्ड लेबर. सेल्डम मीन्स दिस इज अ वर्ड, एक्सपल्शन ऑफ द फेल्ड लेबर. बच्चे का एक्सपल्शन पेल्विस से बाहर नहीं हो पाएगा अगर बच्चे का साइज पेल्विस के डायमीटर से बड़ा है. देन द मैटरनल गेस्टेशनल डायबिटीज इज अ रिस्क फैक्टर. सबसे बड़ा कारण इसका कि अगर मदर जो है वो क्या है, उसको डायबिटीज है, एज वी शो द गेस्टिनल डायबिटीज, जैसे वो प्रेग्नेंट हुई शी वाज हैविंग द साइन सिम्टम्स ऑफ diabetes. The planned cesarean section is gone in the case of estimated fetal weight exceed to 4 kg to 250 grams. यानी 4 किलो से ज़्यादा का अगर बच्चा है और मदर गेस्टिनल डायबिटीज है, we are go for the cesarean section, not for the normal delivery.
सो रैप्चर्ड मेम्ब्रेन विदाउट द लेबर, ये भी हमने बात की थी पीछे कि अगर लेबर से पहले ही माँ का जो मेम्ब्रेन है यानी वाटर बैग है दैट इज रैप्चर्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड द इनएडिक्वेट लेबर. द रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विदाउट द स्पॉन्टेनियस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अकर इन अबाउट 8% ऑफ टर्म प्रेगनेंसी, यानी फुल टर्म प्रेगनेंसी में अक्सर हम देखते हैं कि अगर इसका इंसिडेंस हम देखें तो 8% वुमेन्स में हम ये देखते हैं कि जो लेबर से पहले ही है वो मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है. So the stimulation of the contraction indicates when the labor did not begin after the 6 to 12 hour. अगर हमारा मेम्ब्रेन रैप्चर हो गया है और उसके बाद भी उसको लेबर पेन 6 से 12 घंटे के बीच में नहीं आ रहे हैं, then we are using the prostaglandin for the cervical riping, यानी सर्वाइकल को डायलेशन के लिए, that is called riping. सर्वाइकल राइपिंग के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन का इस्तेमाल करते हैं. हम इंडक्शन देते हैं, इंडक्शन इंड्यूस करते हैं उसको लेबर को बाय गिविंग द ऑक्सीटोसिन. And the secondary laboratory examination हम उसके WBCs and the CRPs, the coronavirus जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, this is a infection in the placenta as well in the fetus, the membrane of the placenta, it is called the coronavirus. The temperature and the antibiotic treatment, इसको हम प्रिवेंटली यूज करते हैं कि ताकि किसी भी चीज से कोई इन्फेक्शन ना हो. सो वी आर स्टार्टेड द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर द ओनली यूज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज. मटेरियल फीटल इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रोसिया, क्या फर्क होगा, क्या इफेक्ट होगा डिस्ट्रोसिया का, यानी कि क्या चीज ही है ऐसे जो इफेक्ट करती हैं माँ और बच्चे में डिस्ट्रोसिया. तो सबसे पहले इंटरपार्टम इन्फेक्शन. Intrapartum means is a term when the labor pains is started and the progress through the delivery. This is the time that is called the intrapartum. इसी बीच में उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर उसका यूट्राइन रैप्चर हो जाए यानी यूट्रस रैप्चर हो जाए. पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, यानी कि एक ये रिंग है, जब आपको पता है कि यूट्रस में एक अपर इंटेंसिटी का फोर्स लगता है, कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, देन द लोअर पार्ट्स ऑफ द यूट्रस कैन contracted. But if the contractions come faster in the lower section of uterus, this is causing a ring of band. This is also obstructed. This is called obstructions between the labor and the fistula formation. अगर वहाँ पर fistula बन जाए during the time of labor at the pelvis floor injury, अगर या उनके pelvis floor पे कोई injury हो जाए, या caput syncytium. Caput syncytium is a kind of complication occurred by the fetus when he was going to spill out themselves from the birth canal, that is called the caput syncytium. It is like a cap like formation in the baby's head, that is called the कि दो सर हैं बच्चे के, this is feel like a cap on the baby's head. This is a storage of water. Cervical fluid is deposit in between the head of the baby. Now with the fetal presentation, the cephalic presentation कैसा हो गया ये. सबसे पहले अगर हम बात करें तो द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज पुअरली. वर्टेक्स पोजीशन होने के बाद भी क्या है, उसका जो फ्लेक्सन पोजीशन है वो बच्चे का अच्छा नहीं है. देन वी आर द फ्लेक्स प्रेजेंटेशन ब्रो. अगर हम बात करें कि इसका जो फ्लेक्सन पोजीशन है वो क्या है, बहुत पुअर है, बच्चा पूरा फ्लैक्स नहीं है और वो ब्रो प्रेजेंटेशन में है. दिस इज आल्सो द माल प्रेजेंटेशन और इट इज अ फेस प्रेजेंटेशन. These all threes are responsible for the fetal presentation, 96 to 95%. Breech presentation is near about 3% and the transfer obliques lies are near about 5% round up. So abnormal presentation, position and the development of the fetus. So disflexion of head, जैसे हमने पीछे देखा था कि जो उसका head है वो ज़्यादा अच्छा flexed नहीं है. This is a poor flexed, right? And the persistence occipito posterior or the transfer position, जैसे हमने पीछे बात की occipit था लेकिन posterior था बच्चे का और भी उसका जो पोजीशन था वो ट्रांसफर था, तो वो कभी भी नॉर्मली बर्थ बच्चा नहीं कर पाएगा. और द ब्रीच प्रेजेंटेशन इज आल्सो नोन एज कि बच्चा उल्टा है, दैट इज बटेक्स प्रेजेंटेशन. ट्रांसफर और द ऑब्लिक लाइन. ट्रांसफर as you know the baby is like in a transfer form or the oblique is like that. This is a pelvis and the uterus the baby is lies is transfer oblique or a transfer
So yeah, or you can say this, the transfer of oblique section is the shoulder presentation. This is the presenting part is shoulder. So abnormal presentation and the position and the development of the fetus face presentation, as you shown there, the chin is anterior part में, the chin is on the posterior part. This is a presentation of the baby you are seen there. So जो इसके इंसिडेंट्स हैं अगर हम देखें तो ये हमारे कम से कम 15 से 20% के नियर अबाउट देखने को मिलते हैं. कैसे डायग्नोस करेंगे आप इसको? उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, देन यू आर सीइंग व्हाट इज द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बेबी बाय थ्रू द पाल्पिटेशन ऑफ द माउथ. अगर आप माउथ को पाल्पिटेट करेंगे तो आपको पता चलेगा नोज एंड द ऑर्बिटल रिजिड. जब आप इसको वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे का जो जिन है वो एंटीरियर है और इन अ पोस्टीरियर फॉर्म. द इटियोलॉजी, द एनलार्जमेंट ऑफ द नेक, या तो बच्चे के नेक जो है दिस इज वेरी लॉन्ग एंड द कॉर्ड कॉइल अराउंड द नेक, या उसके क्या है जो कॉइल है यानी कॉर्ड है उसको कॉइल की हुई है उसकी नेक को, एंड अराउंड द एंड एनी सिफेलस, या तो क्या है उसके सर के चारों तरफ कॉर्ड उसके राउंड अप कॉइल है या फिर क्या है उसकी नेक पर कॉइल्ड अप है. एंड नेक्स्ट इज द मैनेजर. व्हाट इज द मैनेजमेंट देयर? हम यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए सजेशन नहीं देंगे. वी आर गो फॉर द ओनली फॉर द सिजेरियन सेक्शन. So now we are talking about the bro presentation. This is seen the bro presentation. This is a part is a presenting from the pelvis. So incidence इसके हैं आपके near about in 1% in 1400 deliveries. आप कैसे डायग्नोस करेंगे इसको? द वेजाइनल एग्जामिनेशन, फ्रंटल सूचर्स, फ्रंटल सूचर इज दिस सूचर, और सूचर से हमें पता चलेगा. एंड द आइज कैन बी फेल्ट बट नाइदर माउथ. हमें हमेशा क्या फेल्ट होगा जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे? वी ओनली सी द आइज और नॉट द माउथ. ओके, नॉट द चिन इज विद इन द रीच. जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें सिर्फ बच्चे की आइज पता चलेगी, नॉट द माउथ. दैट इज कॉल्ड द ब्रो प्रेजेंटेशन. And the etiology, what is the same as those for the face presentation, means कि हम यहाँ पर भी जो देखेंगे कि जैसे हमारे फेस के साथ हुआ सेम वही इसके कॉजेज हैं क्या ब्रो प्रेजेंटेशन के. सो व्हाट इज द मैनेजमेंट? हम हमेशा इसके लिए भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए सजेशन नहीं देते. वी गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन क्योंकि इट इज अ सेफर फॉर द मदर एज वेल एज टू द फीटस. So we are talking about the breech presentation. As you shown, the baby is in a breech position. The head is upward and the buttocks are the presenting part. So it is a complete breech. This is an incomplete breech and this is a frank breech. As you know, near about the 3% cases are seen in 1000 of deliveries. So there are the three types as is shown. This is a complete breech, incomplete and the frank breech. राइट. द कंप्लीट ब्रीच में जो फ्लैग्ड है वो नियर अबाउट 25% फ्लैग्ड रहती हैं. इनकम्प्लीट ब्रीच में जो फुटलिंग और द नी प्रेजेंटेशन है वो इज 10%. दिस इज अ इनकम्प्लीट. द वन लेग इज इन अ फ्लेक्स पोजिशन बट द अदर लेग इज नॉट इन अ फ्लेक्स पोजिशन. सो कैरेक्टराइज, हाउ कैन यू कैरेक्टराइज इट? एट द 30th week 25% of the fetus in the breech presentation, after the 36 weeks on the changes in the पोजीशन. ज़्यादातर बच्चे को हम 30% 25 वीक्स तक हम देखते हैं. 25% केसेस में जो 30th वीक तक है बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है वो ब्रीच है एंड आफ्टर द 36 वीक चेंजेस पोजीशन. कभी कभी अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं. सो व्हाट इज द इटियोलॉजी? क्यों होता है जो प्रेजेंटेशन है वो माल प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो? दैट इज कॉल्ड द ब्रीच प्रेजेंटेशन. सो उसके लिए क्या है? प्री मैच्योरिटी. प्री मैच्योरिटी में टाइम से पहले, मैच्योरिटी से पहले ही ये सबसे बड़ा कारण है, वो प्री मैच्योर है. एंड द फीटल एबनॉर्मल से बच्चे में कोई एबनॉर्मली है, यूट्राइन एबनॉर्मलीज या कि यूट्रस में कोई एबनॉर्मलीज है, पैल्विस एबनॉर्मलीज उसके पैल्विस में कोई दिक्कत है, अम्बिलिकल कॉर्ड कॉम्प्लिकेशन उसके कॉर्ड में कोई कॉम्प्लिकेशन है, ट्विन प्रेगनेंसी यानी कि दो बच्चे हैं, दो या दो से ज्यादा हैं, एंड द प्लेसेंटा प्रीवा. इट इज द कॉजेज द ब्रीच प्रेजेंटेशन कॉमनली. सो कैसे डायग्नोस करेंगे? दिस इज अ लियोपोल्ड एग्जामिनेशन एंड द वेजाइनल एग्जामिनेशन और द अल्ट्रासोनिक. तो अल्ट्रासोनिक रेज विल शो द बेबी इज इन विच प्रेजेंटेशन. सो द ब्रीच प्रेजेंटेशन को जो है हम कर सकते हैं, वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं हम
और अदरवाइज हम ये मैनुअल इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्रैचेट। वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं हम किन केसेस में, इन द फ्रैंक और द कंप्लीट ब्रीच, एंड द सेकेंड इन एपिजोटमी, एपिजोटमी देके हम डिलीवर कर सकते हैं। इट इंक्रीज द स्पेस ऑफ द बर्थ कैनाल, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कर सकते हैं, CTG रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एंड द ब्रंचिक मैन्योर जिसको हम अभी खोलेंगे, एंड द मैनुअल मैनवोर एंड द मैक्यूअर सिमलाई विल्ट मैनवोर, जिसमें से हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर ब्रैचिट मैनवोर की। द ब्रीच इज अलाउड टू डिलीवर स्पॉन्टेनियसली टू द अम्लाइकस, सीधे हम चाहते हैं कि बच्चा जो डिलीवर वो स्पॉन्टेनियसली डिलीवर करता है। द फीटल बॉडी देन इज हेल्ड अगेंस्ट द मैटरनल symphysis, the suspension of the fetus in the position coupled with the effect of the uterine contraction and the result in spontaneous delivery. Only we can support when the baby in a complete breech, so the baby is delivered spontaneously, that is called the मैनुअल ब्रीच। हम उसको सपोर्ट देते हैं और वो क्या होता है, अम्लाइकस पे सपोर्ट देते देते, दैट इज कॉल्ड द मैनुअल डन बाय द हैंड्स। तो बेबी स्पॉन्टेनियस जैसी सिम्फाइसिस तक आता है हम उसको सपोर्ट देते हैं और बच्चा इजीली डिलीवर स्पॉन्टेनियसली डिलीवर हो जाता है फ्रॉम द वजाइना। So this is again next maneuver, the index and the middle finger, as you shown the index and the middle finger of the one hand are applied over the maxilla। कहाँ पर हम लगते हैं, बच्चे के मैक्सिला पर हम उसको सपोर्ट देते हैं, कौन सी फिंगर से, अपनी कौन सी मिडल फिंगर and the index finger. This is our middle finger and index finger over the maxilla to flex the head। उस head को हम flex करके बाहर निकालते हैं ओवर द हैंड एंड हुक्ड ओवर द फीटल नेक, और उसमें एक तरह का हुक बनाते हैं जिससे बच्चे को हम इजीली उसको शोल्डर को ग्रास्प करके डाउनवर्ड लाके ट्रैक्शन देके बच्चे को डिलीवर कराते हैं। दिस मैनवर इज कॉल्ड द मैक्यूअर-स्मैली मैनवर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रीच प्रेजेंट इंडिकेशन। जब ब्रीच प्रेजेंटेशन है, कब हम सीजरियन सेक्शन की तरफ जाएंगे, जब उसका प्री टर्म डिलीवरी है तब हम सीजरियन सेक्शन की तरफ जाएंगे, या उसकी फर्स्ट डिलीवरी है तो हम सीजरियन सेक्शन की तरफ जाएंगे। एंड द प्रोम यानी कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है तो हम कहाँ जाएंगे, सीजरियन सेक्शन की तरफ जाएंगे। इनकम्प्लीट ब्रीच है यानी कि ब्रीच वो फ्लैक्स पोजीशन में बच्चा पूरा नहीं तो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाएगा। इफ देयर इज अ ट्विन प्रेगनेंसी, वन इज ब्रीच एंड वन इज वर्टेक्स, वी आर गो फॉर द सीजरियन सेक्शन। एंड other large fetus, if the fetus is very large and also in a breech presentation, we are go for the cesarean section. So I continue this lecture on my next lecture. So thank you to all. Thank you.